السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین، آج کے اس بیان میں ہم آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان سادات کا کتنا ادب کرتے تھے وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب عشق و محبت کی بات کی جاتی ہے تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کا نام سنہرے الفاظ میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک گھرانے کی تعظیم اور محبت کا روشن شاہکار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کی ذات صرف ایک فقیہ یا ایک عالم کی ذات نہیں، بلکہ وہ آل رسول کی تعظیم اور ادب کا ایک ایسا بلند مینارہ ہے جنہوں نے زمانے کو سکھایا کہ اہل بیت کی محبت ایمان کی اصل ہے۔ جب تعظیم آل رسول کی بات کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا نام خود بخود ذہن میں آتا ہے۔ آپ نے ایک مقام میں بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت سادات کا کیسا ادب کرتے تھے، آپ کی بارگاہ میں چند واقعے ان کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ شہزادہ سید العلماء حضرت سید شاہ آل رسول حسنین نظمی میاں مہرہ روی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان اپنے مرشدان اعظام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ماہرہ شریف حاضر ہوئے تو آپ کے لیے ایک خاص مقام پر پلنگ بچھا دیا گیا، چارپائی بچھا دی گئی۔ اعلیٰ حضرت نے تھوڑی دیر اس پہ آرام کیا اور پھر خانقاہ شریف میں، درگاہ شریف میں اپنے مرشدان اعظام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلے گئے۔ جب حاضری سے فارغ ہو کے واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہ پلنگ جو آپ کے لیے بچھایا گیا تھا، اس پلنگ پر سید العلماء حضرت سید شاہ آل مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر ابھی تقریباً 3 سال ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ امام عشق و محبت سیدھی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادے کو بیدار نہیں فرمایا، بلکہ چارپائی کے پاس ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ شہزادے آرام کر رہے ہیں اور وقت کا مجدد چارپائی کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ سید کا ادب کیا ہوتا ہے، سیکھیے اعلیٰ حضرت سے۔ اتنے میں حضرت سید شاہ مہدی حسن میاں صاحب سجادہ تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ شہزادے پلنگ پہ آرام فرما رہے ہیں اور وقت کا مجدد چارپائی کے پاس کھڑا ہے۔ صاحب سجادہ
نے शहजादे को डांट कर उठाना चाहा। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहिब सज्जादा की बारगाह में बसत ताज़ीम और तकरीम अर्ज करते हैं, हुजूर शहजादे को आराम करने दीजिएगा। मैंने जो अदब किया है और मैं जो अदब कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि अल्लाह करीम इस अदब की बरकत से मेरे दराजात को बुलंद फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, क्या शान है, क्या मकाम है, क्या इज्जत है, क्या अदब है सैयदों का आला हजरत की बारगाह में। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। मेरे अजीज दोस्तों, इस शान की मिसाल दूर दूर तक नजर नहीं आती है। इसलिए 14वीं सदी में दूर तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे बाअदब आशिक आले रसूल आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान जैसा शर्फ और बुजुर्गी वाला कोई भी आलिम रब्बानी नजर नहीं आता है। मुल्के सुखन की शाही तुमको रिजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। आशिक आला हजरत हुजूर बदर मिल्लत अलैहि रहमा बयान फरमाते हैं कि आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने पीरो मुर्शिद की निस्बत और ताल्लुक का इस कदर एहतराम करते थे, इस कदर अदब करते थे कि पीरो मुर्शिद के शहर महारारा शरीफ से अगर नाई आ जाता तो आप बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे और घर खबर करके पीरो मुर्शिद के शहर के नाई के लिए खाना तैयार कराते थे और खुद खाना ला करके अपने मुर्शिद के शहर के नाई को खाना खिलाया करते थे। मेरे अजीज दोस्तों, मुझे बताना और समझाना यह है कि जब आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान की निगाह में पीरो मुर्शिद के शहर के नाई का इस कदर अदब है, तो फिर उनकी निगाह में पीरो मुर्शिद का किस कदर अदब रहा होगा। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। उलमा बयान फरमाते हैं कि आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दारुल इफ्ता में फतवा नवीसी का काम करते थे। आप तसनीफ तालीफ में लगे रहते थे। आपके दारुल इफ्ता के करीब में एक मकान था जिसमें एक सैयद साहब रहा करते थे, उनके साथ उनके बच्चे भी थे। उन सैयद साहब के कम सिन शहजादे जब कभी आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि के दारुल इफ्ता के सामने आते थे या दारुल इफ्ता में आते थे, तो देखिए आला हजरत इन कम सिन सैयद जादे का कितना अदब करते थे। जब वो आप तशरीफ लाते थे तो आला हजरत अपना कलम और कागज रख दिया करते थे और साहिब जादे की ताजीम के लिए खड़े हो जाया करते थे और तब तक खड़े रहते थे जब तक वो साहिबजादे सामने से इधर उधर ना हो जाएं या कहीं चले ना जाएं। और जब फिर दोबारा आते थे तो फिर दोबारा खड़े हो जाते थे। इसी तरह कई बार होता था, लेकिन आला हजरत ना उनको डांटते थे, ना उनसे मना करते थे, ना उन्हें हटाते थे। हटाना डांटना दूर की बात है, आला हजरत की पेशानी पर शिकन नहीं आता था। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जरा गौर करो, जब आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान
इतने कमसिन बच्चे जो सैयद हैं उनका इतना अदब करते हैं, तो फिर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कितना अदब करते होंगे। जब शहजादे रसूल का इतना अदब है तो फिर नबी आजम का कितना अदब होगा। जब औलाद रसूल से इतना प्यार है, औलाद रसूल से इतनी मोहब्बत है, तो फिर नबी से कितनी मोहब्बत होगी, नबी से कितना प्यार होगा। तभी तो इमाम इश्क मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी दमक, जमीन व फलक समा को समक में नसिक के निशान तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर्शीद को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, सबा वो चले बाग खले फूल खिले, के दिन हो भले अर्श के तले सना में खुले, रिजा की ज़बा तुम्हारे लिए, रिजा की ज़बा तुम्हारे लिए। मेरे अजीज दोस्तों, आला हजरत अली रहमतुर रिजवान ने दुनिया वालों के सामने बरमला अलल ऐलान आले रसूल सादात इकराम के शर्फ और बुजुर्गी, मोहब्बत और इफ़त, अदब और ताजीम का खुतबा पढ़ा और अपनी किताबों में लिखा, अपने किरदार और अमल से ये जाहिर और साबित किया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मेरे अजीज दोस्तों, आला हजरत सैयदों का कितना अदब करते थे। आप जरा इस रिवायत से अंदाजा लगाएं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 6 साल की उम्र शरीफ में मालूम कर लिया था कि हमारे मुर्शिद आजम हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह तआला शेख अब्दुल कादिर जिलानी का शहर पाक बगदाद शरीफ किधर है। फिर उस वक्त से दमे आखिर तक बगदाद शरीफ की जानिब कभी आला हजरत ने पैर नहीं किए। अंदाजा लगाएं, बगदाद शरीफ का इतना अदब है तो फिर मदीने का कितना अदब होगा। आप बड़े प्यारे अंदाज में फरमाते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपको इस तरह के ईमान अफरोज वाक़ियात पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें